गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे इरिगेशन। ठीक है, तो इरिगेशन मतलब नॉर्मली आप लोगों को पता है इरिगेशन मीन्स क्या, कि अगर कोई भी फील्ड्स हो, कोई भी क्रॉप जहाँ पर आप लोगों ने फार्म के अंदर ग्रो किए हैं, वहाँ पर जो आप पानी उसके ऊपर डालते हो उसे हम कहते हैं इरिगेशन। ठीक है, तो इरिगेशन की जो मेथड है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज़ होती है। नेमली एक जो इरिगेशन की मेथड है वो है रेनफॉल, राइट। रेनफॉल थ्रू इरिगेशन होता है, वो आपको पता है। अगर रेनफॉल सफिशिएंट अमाउंट में ना हुआ हो, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं फार्मर्स के कोई भी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो इरिगेशन की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, टू वाटर द क्रॉप्स, मतलब कि क्रॉप्स को पानी तो चाहिए होगा उसके ग्रोथ के लिए। तो अगर प्रॉपर अमाउंट में रेनफॉल नहीं हुई है तो क्या करेंगे फार्मर्स के उसके ऊपर उसको पानी देंगे। ठीक है, और वो जो पानी देने की प्रोसेस है वो डिफरेंट प्रोसेसेस है। तो सबसे पहले तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर से आप लोगों को इरिगेशन की मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स जो यूज़ होती है उसके बारे में आपको आइडिया आ जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग इस टॉपिक के ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। Why do plants need water? The same reasons for which humans need water. Water constitutes a major part of the plant body. This water helps plants to transport the nutrients in their body and is quite important for the growth of the plant. How do plants get their water? The roots help the plant absorb the water from the soil. It indicates that moist soil would mean a continuous supply of water to plants. Do you know that the plants need water right from their germination? Have you heard people say that the seeds will wither away if there is no water? After sowing, seeds need water to germinate, and that's precisely why farmers sow seeds before the rains. But what if there are no rains? How do plants then get water? Irrigation is the solution to this problem. The supply of water to crops at specific intervals is known as irrigation. We need to understand that plants need water more than anything else. Water acts as a shield against the extremities of nature like frost or hot currents. No doubt, water is of foremost importance to the crop. That is why we will study irrigation as a process of production. Do you know what irrigation depends on? Can you guess? Yes, it depends on the soil type. And what, according to you, will the frequency of irrigation depend on? Can you guess? Yes, it does depend on the season. During summer, soil is devoid of moisture. This is because the heat leads to a higher rate of evaporation. That is why we need to irrigate the fields frequently during the summer months. During the monsoons, there is a little need for irrigation. Now let us look at the sources of irrigation. What are the sources of irrigation? Ponds, wells, lakes, dams, rivers are various water bodies that help supply water for irrigation. However, the methods of irrigation have changed over the years. In irrigation, water is lifted from water bodies and then carried to the fields. In the traditional method, who do you think does the work of lifting the water? It's the cattle or humans who lift water from these sources. These methods were inexpensive for the farmers, but were not quite efficient. Let us take a quick look at a few traditional methods of irrigation first. We will look at the moat or pulley system, a chain pump, dhekli, and rahat, which is a lever system. The first system is where water is pulled out of water source with the help of a pulley. The pulley can be moved in several ways to then carry the bucket of water to different places in the field. But this kind of irrigation requires human labor. There is also another problem of uneven distribution of water. Thus, this type of irrigation is less efficient. What about the next type? A chain pump? This is an interesting method. A bucket is tied to a wheel, and this wheel is pulled by a chain. This wheel is placed above a water body. The wheel, when it turns, lets water to be collected inside the bucket. This bucket then pours the water out when it comes onto the top. Water then flows into the field in the man-made canal-like system.
Here as well, human labor may be required to pull the chain. What about the Dhekli? This system of irrigation requires 2 people or a load needs to be kept attached to the log. Which log? Can you see that V-shaped log is fixed to the ground in an erect manner? Now there is another log that is placed between its forked branch. This log has a bucket attached to one end. When the log is moved, it helps lower the bucket and get a bucket full of water from the well. This water is then dropped into a narrow canal-like system that waters the fields. This method leads to wastage of water. Now what about the last system? The Rahat system? This is a 1,300-year-old method of irrigation which now is almost extinct. This one requires 2 wheels. One wheel is attached with several buckets all around its circumference and is placed halfway inside the water body. The other is placed on the ground with a rod attached to it. This rod is placed horizontally. It can be made to move in a circle. Usually, cattle are made to operate the system. Humans do it at times too. When the rod is moved in a circular manner, it rotates the 2 wheels in turn. The wheel which is inside the water body collects water into the buckets and deposits it onto the surface. Canal-like systems then carry the water to different parts of the field. Wasn't this wonderful to learn? But do these methods exist even today? Well, we'll find that out in our next lesson. There we will study the modern methods of irrigation. Now modern methods. हम लोगों ने अगले लेक्चर में क्या देखा? जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम्स हम लोगों ने देखी. अब जो देखेंगे वो है मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम. तो चालू करते हैं. जो टॉपिक है वो हमारा and sprinkler system. Let us learn about these 2 methods in detail. A sprinkler system is used in arid and uneven regions as an alternative method of irrigation. This system employs many perpendicular pipes with rotating nozzles at the top, installed at regular intervals. The pipes are placed on the field and are connected to the main pipelines that emerge from the main water storage tank. Water is conveyed under high pressure through the pipes with the help of a pump. The water comes out from the rotating nozzles in the form of spray, somewhat as rain. In a drip irrigation system, water is delivered at or near the root zone of crops drop by drop. A drip irrigation system is the most efficient system of irrigation as there is absolutely no wastage of water. This system is mostly used in areas with poor water availability. Both the modern systems of irrigation are costly but require less labor and time. In this module you have learned irrigation is. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है वीडियो के अंदर कि ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स आर यूज्ड इन द इरिगेशन प्रोसेस. ठीक है. अब आगे देखते हैं यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर. मोस्ट एग्रीकल्चर in India is rain feed, that is the success of crop is most areas is dependent on timely monsoon and sufficient rainfall spread through most of the growing season. देखो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड्स या फिर जो भी एग्रीकल्चर की जो प्रोसेस होती है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो ऑन द रेनफॉल, राइट, या फिर मानसून सीजन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. राइट. मानसून सीजन के अंदर फार्मर्स ग्रो करते हैं. राइट. और मानसून के अंदर इजीली उसको वाटर अवेलेबल हो जाता है. अब फार्मर्स क्या करते हैं कि रेनी सीजन के अंदर जो भी रेनफॉल हुई है वो वाटर को कलेक्ट करते हैं और दूसरी सीजन्स के लिए भी वो यूटिलाइज कर सके उस तरह से उसे यूज़ करते हैं. हेंस पुअर मॉनसून कॉज क्रॉप फेलियर.
राइट। बट अगर ऐसा हुआ है कि मॉनसून की जो सीज़न है वो अच्छी नहीं गई, प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं हुआ है, तो क्या होगा कि जो भी क्रॉप्स प्रेजेंट थे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट, क्योंकि उसको प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिला तो वो खुद का ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। दैट to ensure that the crops get water at the right stage during their growing season can increase the expected yield of the crop। अब एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि जो भी क्रॉप्स है, राइट, उसको आप थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद आपको उसको वाटर देना पड़ता है, ठीक है। एक कंटिन्यूसली वे में आप उसे वाटर नहीं देते। अगर कंटिन्यूस वे में दोगे तो क्या होगा कि क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा वाटर इंटेक करेंगे और क्रॉप्स जो भी प्लांट्स है वो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत कम अमाउंट में भी आपको वाटर नहीं देना है, एक सफिशेंट अमाउंट में आपको उसको वाटर देना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर आप उसे राइट कंडीशन है, राइट टाइम पर अगर आप उसे वाटर देते हो तो क्या होगा कि जो भी यील्ड जो है क्रॉप की वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सकती है। Therefore many measures are used to bring more and more agricultural rain under irrigation। उसकी वजह से ज़्यादा जो क्रॉप फील्ड्स है, राइट, जो क्रॉप फील्ड्स है या फिर एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन की प्रोसेस यूज़ होती है। अगर आगे बात करें तो कौन कौन सी मेथड्स है या फिर कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से आप लोग मतलब कि अगर मानसून सीज़न अच्छी नहीं हुई है तो आप कहाँ से वाटर या फिर इरिगेशन की प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको, वो देखते हैं। इंडिया हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड हाईली वेरिड क्लाइमेट। इंडिया के अंदर आप लोगों को पता है बहुत सारी सीजन्स होते हैं और बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज भी प्रेजेंट, लाइक वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स, टैंक्स, ये सभी जो चीज़ें हैं, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सभी जो चीज़ें हैं वहाँ से आप लोगों को इजीली पानी अवेलेबल हो सकता है, राइट। और बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशन भी चेंजेस होती रहती है इंडिया के अंदर, राइट। अंडर सच कंडीशन सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स आर एडोप्टेड टू सप्लाई वाटर टू एग्रीकल्चरल लैंड्स डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल। उसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट एग्रीकल्चरल जो फील्ड्स होते हैं या फिर इरिगेशन की जो प्रोसेस होती है वो फार्मर्स अलग अलग तरह से उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर देखो कोई भी फील्ड है उसके बाजू में अगर वेल है तो वो कहाँ से इरिगेशन की प्रोसेस करेंगे, फ्रॉम द वेल, राइट। अगर कैनाल्स होगी तो कैनाल्स में से वाटर की इरिगेशन प्रोसेस करेंगे। अगर कोई भी रिवर होगी तो रिवर थ्रू इरिगेशन की प्रोसेस करेंगे, राइट। मतलब कि जैसी अवेलेबिलिटी होगी वाटर की उस तरह से वो जो भी फार्मर्स होंगे वो जो भी इरिगेशन की प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट एग्जांपल इज वेल, राइट, कुआं, राइट। तो नेमली 2 टाइप्स ऑफ वेल्स की जो मेथड है वो यूज़ होती है, एक है डग वेल्स एंड नेक्स्ट वन इज द ट्यूब वेल्स, राइट। ये दोनों मेथड्स यूज होती है। इसके अंदर क्या होगा, डग वेल के अंदर क्या होगा कि जब रेनी सीजन आती है तो क्या करते हैं कि वो बड़ा सा खड्डा करते हैं, ज़मीन के अंदर बड़ा सा एक खड्डा करते हैं जिसके अंदर क्या होगा कि जो वाटर है वो कलेक्ट हो जाएगा, राइट। और वो जो कलेक्टेड वाटर है उसे बाद में वो इरिगेशन प्रोसेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, ट्यूब वेल्स, राइट। ट्यूब वेल्स आप लोगों ने देखी होगी, बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइंस होती है जिसके थ्रू जो भी फार्मर्स है वो इरिगेशन की प्रोसेस करते हैं। मतलब कि जो भी वेल है वहाँ से आपकी फील्ड तक पानी पहुँचाने के लिए वो ट्यूब वेल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू वो वाटर जो है वो पंप करते हैं और इरिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द कैनाल्स। कैनाल्स क्या है तो कि आप लोगों को पता होगा कैनाल्स क्या है, वो वन टाइप ऑफ रिजर्वियर्स है। कैनाल्स किसके साथ अटैच होती है तो कोई भी रिवर्स या फिर डैम्स, चेक डैम्स के साथ कैनाल्स अटैच होती है, राइट। और उसके बहुत सारे ब्रांचेस पड़ते हैं, ठीक है। मतलब कि एक जो उसका मेन जो वाटर सोर्स है वो क्या होगा, हो सकता है डैम्स हो सकते हैं या फिर रिवर्स हो सकती है, राइट। उसके बाजू में जो भी छोटी छोटी जो भी कैनाल्स अटैच होती हैं, राइट, उसके थ्रू जो भी फार्मर्स वाटर का यूटिलाइज करके इरिगेशन करते हैं उसे हम बोलेंगे कैनाल सिस्टम, ठीक है।
दिस इज यूजुअली एन इलोबरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम, इलोबरेटेड सिस्टम है, एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम है। दिस इज इन दिस सिस्टम कैनाल्स रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वियर्स और फ्रॉम द रिवर्स, एट कोई भी रिजर्वियर से या फिर डैम्स, चेक डैम्स बोल सकते हो आप, या फिर कोई भी रिवर है वहाँ से। द मेन कैनाल इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस कैनाल्स हैविंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूशंस टू इरिगेट फील्ड। समझ में आया? मतलब कि जो एक मेन कैनाल होगी जो रिवर के साथ अटैच्ड है, उसके बाद उसी कैनाल में से बहुत सारी ब्रांचेस बनेंगी और वो जो बहुत सारी ब्रांचेस होगी वहाँ से फार्मर्स क्या कर सकते हैं कि इरिगेशन के लिए जो भी वाटर उनको चाहिए वो कंज्यूम कर सकते हैं, वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज द रिवर लिफ्ट सिस्टम। अब देखो, कोई भी अगर ऐसी फील्ड है जिसके आजू बाजू में कोई भी रिवर प्रेजेंट है तो वो फार्मर्स डायरेक्टली कहाँ से वाटर कलेक्ट करेंगे? फ्रॉम द रिवर्स, मतलब कि वहाँ से उनको सफिशिएंट अमाउंट में वाटर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। इन एरियाज वेयर कैनाल्स फ्लो इज इनसफिशिएंट और इरेग्युलर ड्यू टू इनएडिक्वेट रिजर्वियर रिलीज, द लिफ्ट सिस्टम इज मोर रेशनल। मतलब कि अगर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर कैनाल्स अवेलेबल नहीं है, और अगर कैनाल्स अवेलेबल है तो फिर भी जो रिजर्वियर्स के साथ वो अटैच्ड है उसमें पानी नहीं है, तो कैनाल्स में भी पानी नहीं होगा, राइट। तो उसकी वजह से वहाँ पर जो भी फार्मर्स होंगे वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे? आजू बाजू में जो भी रिवर्स होंगी उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होंगे, राइट। वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर्स, मतलब वाटर कहाँ से आएगा? डायरेक्टली रिवर्स में से, फॉर सप्लीमेंटिंग इरिगेशन इन एरियाज क्लोजर टू रिवर, मतलब कि जो भी रिवर के क्लोजर एरियाज होंगे वहाँ पर वो डायरेक्टली सप्लाई करेंगे। एंड लास्ट वन इज द टैंक सिस्टम, राइट। टैंक्स के अंदर क्या होगा कि दिस आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वियर्स विच इंटरप्ट एंड स्टोर द रन ऑफ स्मॉलर अटैच एरिया, मतलब कि छोटे छोटे, हम लोगों ने जो वीडियो के अंदर देखा था ना, ड्रॉप वाइज जो भी वाटर देते हैं हम क्रॉप्स को, राइट, उस सिस्टम में हम टैंक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखें तो फ्रेश इनिशिएटिव्स फॉर इंक्रीजिंग ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी फॉर एग्रीकल्चरल इंड्यूस रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर सेट मैनेजमेंट, ये इसके साथ अटैच्ड है। दिस इन्वॉल्व बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम्स विच लीड टू द इंक्रीज इन द ग्राउंड वाटर लेवल, और वो क्या करेंगे तो कि चेक डैम्स जो है उसको इंक्रीज करेंगे, मतलब कि उसके ग्रोथ में इंक्रीज करेंगे, राइट। चेक डैम्स मतलब कि कोई भी फील्ड है वहाँ पर वो चेक डैम्स बनाएंगे, तो क्या होगा कि जो चेक डैम्स है वहाँ पर जो वाटर कलेक्ट होगा उसको वो डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। The check dam stop the rain water from flowing away and also reduce the soil erosion। वो क्या करेंगे कि जो भी वाटर है वो जो सी के अंदर जा रहा है उसको भी स्टॉप करेंगे, और दूसरा कि जो सॉइल इरोजन की जो प्रोसेस है उसको भी वो रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा इरिगेशन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है। मतलब कि जो क्रॉप ग्रो करते हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स यूज़ होते हैं फॉर द हायर प्रोडक्शन ऑफ यील्ड। मतलब कि जो भी आपको यील्ड चाहिए वो अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आप लोग क्रॉपिंग पैटर्न्स का यूज़ करते हो, ठीक है। और क्रॉपिंग पैटर्न्स मेनली 3 टाइप्स की हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर आप लोगों को क्रॉपिंग पैटर्न्स है वो इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगी, क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। You to note that crops are sown in a definitive pattern. Yes, you heard me right. They aren't just sowed in vast fields with absolutely no planning. Farmers have now realized the value of planning the cultivation of crops. What does planning mean when it comes to crop cultivation? What plans can the farmer make for his land? He addresses questions like which crop is best suited for his soil type, or a crop which will give him the best yield in a short span of time. He may also look at the quality of the seeds and their resistance to diseases and pests. Apart from these questions, what else does a farmer plan?
Well, he tries to get the maximum yield from his small piece of land. How can he get the best yield? Can he grow multiple crops in a year? Yes, he can. There are various types of cropping patterns that a farmer can employ. Let us look at a few of them in detail in this video. The first cropping pattern is called as mixed cropping. What does this cropping pattern entail? For a start, it requires the seeds of two different crop varieties. In this pattern of cropping, we can have a farmer planting two types of crops in the same piece of land. Wait, did I just say two crops in the same piece of land? Yes. You may now wonder whether the two crops may compete for the nutrients in the soil. You may also think of the damage one crop may do to the other. But this is not the case. The two crops are chosen in such a manner that one does not interfere in the growth of the other. For instance, if wheat and gram are grown together in the same field, the nutrients that wheat depends on will be different from those of gram. This ensures that the failure of one crop doesn't take the toll on the farmer. There always is a backup, and if both do well, then the farmer is assured of double benefits. This is precisely what mixed cropping is all about. The next cropping pattern is called intercropping. Can you take a guess as to how this cropping pattern works? What does the prefix inter mean? In simple words, it means in between. But what does it mean when it comes to the pattern of planting crops? When crops are planted in alternate rows in the same field, we call this technique as intercropping. Once again, care is taken to ensure that the requirements of the two crops are different. Now we come to the last type of cropping pattern. This is called as crop rotation. I am sure the term is self-explanatory. Only one type of crop is grown in the field at a time. However, once the crop has been harvested, a different crop is then planted in the same field. This process is repeated several times. We call this a pre-plant succession. When the plants are growing, it is important to have the land irrigated so that moisture is retained in the soil. It is also necessary to add sufficient nutrients to the soil to help plant growth. Do you know why do we have to take all these measures? This will take us to our next topic. ओके, तो हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स देखी। फर्स्ट वन कौन सी है? मिक्स्ड क्रॉप। मिक्स्ड क्रॉप के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि 2 या 2 से ज़्यादा जो क्रॉप्स होंगे उसको हम साइमल्टेनियसली एक ही फील्ड पे ग्रो करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है। कौन कौन सा है? व्हीट ग्राम और व्हीट प्लस मस्टर्ड और ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर। इस तरह से जो भी 2 या 2 से ज़्यादा जो क्रॉप्स है वो एक ही फील्ड पर हम ग्रो करके हम लोग मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है उसके बारे में अब देखते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है इंटर क्रॉपिंग, राइट। इंटर क्रॉपिंग पैटर्न है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि 2 या 2 से ज़्यादा जो क्रॉप्स है वो साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक ही फील्ड में 2 या 2 से ज़्यादा साइमल्टेनियसली। देखो यहाँ पर अलग अलग एक ही फील्ड है, उसमें अलग अलग पैटर्न्स आप लोगों ने ग्रो की, राइट। एक ही बार में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप आपने ग्रो किए। तो ये पैटर्न भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो। आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, सोयाबीन, मेज और फिंगर मिलेट, राइट, या फिर फिंगर मिलेट एंड काउपी, राइट, काउपी। ये सभी चीज़ों का आप इजीली यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा कि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जो भी आप क्रॉप्स का सिलेक्ट करते हो उन क्रॉप्स को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे वो दोनों क्रॉप्स को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी इसके अंदर, ठीक है, समझ में आया। एंड जो लास्ट वन है वो है क्रॉप रोटेशन, मतलब कि एक ही फील्ड में अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप सीजन वाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को अगर आप ग्रो करोगे तो उसे हम बोलेंगे क्रॉप रोटेशन। क्लियर? वो हम लोगों ने वीडियो में इजीली समझ चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों को अभी डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। मतलब कि देखो, एक बार हम लोगों ने क्रॉप तो ग्रो कर दी,
बट क्रॉप को ग्रो करने से हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। हमको क्या करना पड़ेगा, उस क्रॉप्स को पहले हमें प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट किसके, तो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, पेस्टिसाइड्स, वीड्स, ये सभी जो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्म करेंगे, उसको अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से पार्टिकल्स है या फिर जो वीड्स है वो किस तरह से क्रॉप के ऊपर अफेक्ट करती है, वो पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक के अंदर। Potential threats to crops, harsh weather, insects, pests, and what else? Weeds. That's right. Weeds are harmful plants that grow alongside the crops. Why are weeds considered to be a threat? It's because these plants too have roots which take up the nutrients from the soil and they compete for sunlight and water. This could seriously damage the crops, leaving them with little or no nutrients at all. So, how do farmers get rid of these plants? Farmers usually remove all weeds in the initial stage of soil preparation. While tilling the soil, almost all weeds are uprooted and their remains serve as humus to the soil. However, if these weeds grow after the crop is sown, they need to be removed manually. This can be done with bare hands or with medicines which kill these plants. Wait, what do I mean by medicines? Won't these medicines damage the crop? Well, these are known as weedicides and are designed to only kill weeds. These chemicals are diluted using water and then spread over the farms. Farmers also use implements like a khurpi or a seed drill to uproot weeds. Now tell me, can weeds be removed anytime? Or should we destroy them before a particular time? Yes, weeds should be uprooted before they produce flowers and seeds. Weedicides too should be sprayed before they flower. But extreme caution must be maintained while spraying these chemicals. Can you guess why? Well, these chemicals can prove harmful even to the farmers. And that is why you see farmers covering their nose and mouths with a piece of cloth while spraying these chemicals. Now that you've studied about crop protection against weeds, let us study the second last stage of crop production. The stage where the crop has matured after a span of 3 to 4 months. It's the harvest time. And what does it exactly mean? Harvest the crop simply means to cut the crop after it has matured. Do you think it's as easy as it sounds? Of course not. Harvesting of crops, if done manually, is done with a sickle. If a machine is used to harvest crops, it is usually the harvester. Crops are either pulled out or cut close to the ground. Once the crop is harvested, it needs to be threshed. What do I mean by threshed? The grains need to be separated from the stalks. Threshing is the next step after harvesting and is carried out manually. However, even machines called threshers are employed for this nowadays. In certain cases, farmers use a combination of harvester and thresher, a machine called combine. The machinery can carry out the process of harvesting and threshing together. Threshing is usually the beating of stalks on a surface that separates the grains from the stalks. Now the grains have yet another covering before they can be finally stored. That is the chaff. Chaff is then separated by a process called winnowing. In this process, small farmers manually separate the chaff from grains with the help of the wind. Grains are dropped down from a height and the wind carries away the chaff while the grains, being heavier, get collected into a heap. So, with the 3 processes of harvesting, threshing and winnowing, grains are now ready for storage. Do you think storage of grains involves a lot of work? We will soon find that out in our next video. तो हम लोगों ने जो वीडियो देखा उसके अंदर से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि वीड्स जो है वो किस तरह से हार्मफुल है फॉर द क्रॉप यील्ड। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या दिया गया है, फील्ड क्रॉप्स आर इंस्पायर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट्स, पेट्स एंड डिजीज। देखो उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले तो वीड्स दिया गया है। ठीक है, वीड्स मतलब क्या होगा वो आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि हमारा जो मेन क्रॉप्स है उसके साथ जो दूसरे छोटे छोटे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, छोटे छोटे पौधे जो ग्रो होते हैं वो है वीड्स।
राइट। वो क्या करेंगे वीड्स, तो कि जो भी हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स हमारे क्रॉप के लिए, जो हमारे डिज़ायर्ड क्रॉप है उसके लिए हम लोगों ने जो न्यूट्रिएंट्स दिए हैं वो क्या करेगा वीड्स, तो कि वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से वीड्स का ग्रोथ होगा एंड जो हमारे डिज़ायर्ड क्रॉप्स है उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड डिजीजेस, ये सभी चीज़ें अफेक्ट करेंगी। उसके बाद इफ़ वीड्स एंड पेस्ट आर नॉट कंट्रोल at the appropriate time, then they can damage the crop so much that most of the crop is lost। देखो अगर हम लोगों ने जो भी क्रॉप्स है राइट, उसमें से हम लोगों ने अगर पेट्स को एंड अगर वीड्स को रिमूव नहीं किया तो क्या होगा कि वो अल्टीमेटली जो भी हमारे लास्ट में जो यील्ड मिलने वाली है उसके ऊपर वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, राइट। और जो भी हमारे क्रॉप्स होंगे उसको डायरेक्टली अफेक्ट करके क्या करेंगे, उन क्रॉप्स को वो किल कर देंगे, डेड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वीड्स के कुछ नेम दिए गए हैं। यहाँ पर ज़ैंथेनियम दिया गया है, राइट। ज़ैंथेनियम मीन्स होता है गोखरू, राइट। देन पार्थेनियम दिया गया है, गजरगस, देन साइप्रस, रोटोंडियस, राइट, मोथा। दिस आर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। अब वो क्या करेंगे, जो भी वीड्स होंगे वो क्या करेंगे, एक तो फूड के लिए वो फूड, स्पेस एंड लाइट के लिए वो compete करेंगे किसके साथ, जो हमारे डिज़ायर्ड क्रॉप्स है उनके साथ, ठीक है। मतलब कि जो हमारे डिज़ायर्ड क्रॉप के लिए हम लोगों ने जो फूड दिया है, जो स्पेस दी है एंड जो लाइट है, वो कौन ले लेगा, तो वीड्स ले लेंगे, ठीक है। वीड टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। वीड्स क्या करेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने दिए हैं वो एब्जॉर्ब कर लेगा एंड जो भी क्रॉप की जो यील्ड है उसके ऊपर वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। इसी वजह से हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा कि हम लोग जब अपने डिज़ायर्ड क्रॉप्स को अगर ग्रो करते हैं उसके पहले हम लोगों को ये जो वीड्स है उसे हमें पहले रिमूव करना होगा वहाँ से। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे जो डिज़ायर्ड क्रॉप्स है उसको इजीली वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपको दिया गया है। देन देखो, weeds take up nutrients and reduce the growth of the crop. Therefore, removal of weeds from cultivated fields during the early stages of crop growth is essential for the growth harvest। ये चीज़ें में हम लोगों ने वीडियो के अंदर देख ली है, ठीक है। जनरली इंसेक्ट्स, पेट्स अटैक द प्लांट इन 3 ways। देखो अगर कोई भी इंसेक्ट होंगे या फिर कोई भी पेट्स होंगे वो 3 तरह से किसी भी क्रॉप के ऊपर अटैक करेंगे। फर्स्ट वन कहाँ पर, तो कट द रूट, स्टेम्स एंड लीफ, ठीक है। दूसरा, दे सक द सेल्स सेप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है प्लांट के अंदर उसे वो सक कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। एंड थर्ड वन इज द दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स, मतलब वो कहाँ पर ग्रो होंगे, आप लोगों ने देखा होगा ना कि कोई भी पके फ्रूट्स जो होते हैं उसके अंदर हमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स एंड पेट्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो वो डायरेक्टली वहाँ पर ग्रो होंगे। अब दूसरी चीज़ें आपको दी गई है डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो मेनली प्लांट्स के ऊपर जो डिजीज क्रिएट करते हैं वो पैथोजेंस है। कौन कौन से पैथोजेंस है, तो बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस। बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस आर द पैथोजेंस विच कॉजेज डिजीज टू द प्लांट, ठीक है। और ये जो भी पैथोजेंस होंगे वो प्रेजेंट कहाँ पर होंगे, इनटू द एयर, वाटर एंड सॉइल, वो तीनों जगह पर प्रेजेंट होंगे। वो मतलब कि वो कहीं से भी पैथोजेंस जो है वो प्लांट के ऊपर इजीली अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी वीड्स है, इंसेक्ट्स हैं एंड जो भी डिजीज क्रिएट करते हैं, ठीक है, उससे हम लोग प्लांट्स को बचा सकते हैं। किस तरह से, बाय यूजिंग सर्टेन मेथड्स। सर्टेन मेथड्स में क्या होगा कि एक तो हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स कौन कौन से, तो हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स, ठीक है। मतलब कि अगर किसी भी हर्ब्स को हमें रिमूव करना है, राइट, या फिर किसी भी वीड्स को हमें रिमूव करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हर्बिसाइड्स। अगर किसी भी इंसेक्ट्स को हमें रिमूव करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स।
राइट। एंड अगर कोई भी फंगल डिजीज होगी तो उसे हम रिमूव करने के लिए फंगीसाइड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दिस केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप प्लांट्स और यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड सॉइल। अब क्या होगा कि देखो ये जो भी केमिकल्स जो हम ऐड कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, राइट, वो जो भी केमिकल्स होंगे वो क्या करेंगे कि जो हमारे डिज़ायर्ड, मतलब कि हमें जिस चीज़ को अगर मारना है वहाँ से, मतलब कि पेट्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, वो जस्ट उसी के ऊपर अफेक्ट करेंगे, हमारा जो भी क्रॉप होगा उसके ऊपर वो अफेक्ट नहीं करेंगे। मतलब कि हमारा जो डिज़ायर्ड क्रॉप है उसके ऊपर वो डिस्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बट एक चीज़ और है कि ये जो भी हम केमिकल्स यूज़ करते हैं दे आर पॉइजनस, ठीक है, मतलब कि वो पॉइजनस है हमारे लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, ठीक है। और अगर ज़्यादा अमाउंट पे वो अगर जो भी पेस्टिसाइड्स है या फिर जो भी फर्टिलाइजर्स है वो सॉइल के अंदर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है सॉइल के अंदर विच आर यूजफुल फॉर प्लांट्स, राइट, मतलब कि प्लांट्स के लिए यूजफुल है फॉर द ग्रोथ, उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो किल कर देगा या जिसकी वजह से हमारा जो क्रॉप यील्ड है वो कम हो सकती है, ठीक है। वीड्स कंट्रोल मेथड्स ऑल्सो इंड्यूस मैकेनिकल रिमूवल। अब क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल रिमूवल भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना होगा कि जब भी आप कोई भी न्यू क्रॉप को अगर आपकी फील्ड में अगर ग्रो करना चाहते हो तो आपको पहले क्या करना होगा कि जो भी वीड्स जो प्रेजेंट है सो आपकी फील्ड के अंदर, राइट, उसको थ्रू थ्रेशर या फिर थ्रू ट्रैक्टर आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ से उसे रिमूव कर सकते हो, ठीक है। जब वो रिमूव हो जाएगा उस फील्ड में से, उसके बाद आप लोग जो भी आपके डिजायर्ड क्रॉप्स है उसको वहाँ पर ग्रो करके आप अच्छी यील्ड पा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं। क्रॉप, कोई भी क्रॉप है उसको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट चीज़ जो बची है, हम लोगों को क्रॉप मिल गया, उसका हम लोगों ने हार्वेस्ट कर लिया। अब लास्ट चीज़ जो बची है वो है स्टोरेज, राइट। हम स्टोर कहाँ करेंगे उसे, तो जो है वो है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। स्टोरेज के बारे में अगर हम बात करें तो स्टोरेज लूजेस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कैन बी वेरी हाई, राइट। देखो अगर हमने किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा टाइम तक अगर हम लोगों ने उसे स्टोर करके रखा होगा तो उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। वो बायोटिक फैक्टर्स भी होंगे, एबायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बायोटिक फैक्टर्स में जो बात करें तो इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंजाई, माइट्स, बैक्टीरिया, ये सभी जो चीज़ें हैं वो क्या करेंगी कि हमारा जो भी स्टोर्ड फूड है उसके ऊपर अफेक्ट करके उसे बिगाड़ देंगे। एंड अगर हम एबायोटिक की बात करें तो इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, राइट, इन द प्लेस ऑफ स्टोरेज, मतलब कि अगर उसे इनएडिक्वेट अमाउंट में अगर मॉइस्चर मिला और टेम्परेचर प्रॉपर नहीं मिला तो क्या होगा, वो सड़ जाएगा, ठीक है। दिस फैक्टर्स कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, लॉस इन वेट, प्रॉपर जर्मिनेबिलिटी, डिस्कलरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑल लर्निंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी। मतलब ये सभी चीज़ें जो है, फर्स्ट आपको दिया गया है डिग्रेडेशन, मतलब कि आपका जो भी स्टोरेज फॉर्म में जो भी ग्रेन्स है या जो भी है उसको डिग्रेड कर देगा। दूसरा कि उसके जो वेट है उसे कम कर देगा। थर्ड है पुअर जर्मिनेबिलिटी, मतलब कि जो सीड के पास जो जर्मिनेशन की जो कैपेसिटी थी वो कम हो जाएगी। देन डिसकलरेशन, उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। जो पहले जो कलर था उसका डार्किश कलर जो था वो चेंज होकर लाइटिश कलर में चेंज हो जाएगा। लास्ट आपको दिया गया है कि अगर इन सभी चीज़ों में अगर चेंजेस हुआ तो लास्ट में उसकी जो मार्केट प्राइस है वो भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। These factors can be controlled by proper treatment and by systematic management of warehouse. इन सभी चीज़ों को से हम बच सकते हैं किस तरह से, हम अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट करें या फिर जो भी वेयर हाउस होते हैं जहाँ पर हम सभी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं उसका अगर प्रॉपर मैनेजमेंट किया हुआ होगा तो हम इस सभी चीज़ों से बच सकते हैं। Prevention and control measures are used before grains are stored in further
यूज़, मतलब कि उसके जो भी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स जो है उसके अंदर जो भी हमें ऐड करना है राइट, वो सभी चीज़ें हमें ऐड कर देने चाहिए, उसके बाद हमें उसे स्टोर करना चाहिए। दे इंड्यूस स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर स्टोरेज, मतलब कि उसको प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, जो भी चीज़ें हम स्टोर करके रखने वाले हैं उसे प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। दूसरा, वो प्रॉपरली ड्राई होनी चाहिए, मतलब कि उसके अंदर जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है उसे हमें रिमूव करना होगा, इसलिए उसे ज़्यादा देर तक हमें सनलाइट में रखना होगा। थर्ड वन इज प्रॉपर ड्राइंग टू प्रोड्यूस द फर्स्ट इन द सनलाइट, समझ में, मतलब कि प्रॉपर ड्राइंग करनी पड़ेगी। एंड देन इन शेड, उसके बाद हम उसे छाँव में रखेंगे, शेड में रखेंगे। एंड फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल्स दैट किल पेस्ट, मतलब कि फ्यूमिगेशन की प्रोसेस करेंगे राइट। फ्यूमिगेशन की प्रोसेस तो क्या होगा कि जो भी पेट्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर वो सभी मर जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में जो भी क्रॉप्स होते हैं उसको हम पूरी ये जो प्रोसेस है वो इजीली कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो था उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। जो नेक्स्ट है वो है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। थैंक यू। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो है एनिमल हस्बेंड्री। आज हम जो पढ़ेंगे वो है एनिमल हस्बेंड्री, देन उसके बाद हम देखेंगे कैटल फार्मिंग, उसके बाद हम देखेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री मीन्स क्या है, तो सबसे पहले कि जो भी एनिमल लाइफ स्टॉक है, इन द सेंस जो भी एनिमल्स, जिस भी एनिमल्स का आप यूज़ करते हो फॉर योर फूड राइट, मतलब कि लाइक काव का यूज़ करते हो आप मिल्क के लिए राइट। अगर हम कोई भी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बात करें हम राइट, चिकन के बारे में अगर बात करें फॉर मीट, या फिर उसके एग्स के लिए आप यूज़ करते हो हनी बी राइट, तो बीज का आप यूज़ करते हो फॉर देयर हनी, फिश राइट, ये सभी जो चीज़ें वो किसके अंदर आएंगी, इन द एनिमल हस्बेंड्री राइट। मतलब कि अगर दूसरा आपको एग्जांपल दूं कि अगर कोई भी कैटल है, काउस है, सॉरी सीप है, गोट है, ये सभी जो चीज़ें उसके अंदर से आप लोगों को वूल मिलता है राइट। देन ये सभी जो चीज़ें जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है फॉर योर फूड एंड फॉर योर रिक्वायरमेंट्स, ये सभी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इन एनिमल हस्बेंड्री इट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक, मतलब कि साइंटिफिकली जो भी आप किसी भी चीज़ का जो मैनेजमेंट करते हो उसके वो आएगा एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। ठीक है, देन इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। इन सभी चीज़ों के ऊपर, मतलब एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है फीडिंग राइट, मतलब कि जो भी वो खाना खाते हैं उसके बारे में है। नेक्स्ट वन इज द ब्रीडिंग, मतलब कि जो भी उसका रिप्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस जो करते हैं वो है ब्रीडिंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग करते हैं ना, वो है ब्रीडिंग प्रोसेस। एंड थर्ड वन इज द डिजीज कंट्रोल। ये तीनों चीज़ें का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है राइट। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। ये सभी चीज़ें किसके अंदर ऐड होंगी, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। ऐसा नहीं है कि जस्ट उनके मिल्क के लिए या फिर मीट के लिए आप इन सभी चीज़ों को ग्रो करते हो, बट उसके जो भी लाइक शीप है तो शीप में से आपको वूल मिलता है राइट, मतलब कि दूसरे भी उसके बहुत सारे नीड्स है और एप्लीकेशंस है, उन सभी चीज़ों के लिए आप एनिमल हस्बेंड्री को प्रेफर करते हो। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस एंड एज द लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर मिल्क, एग्स एंड मीट इज ऑल्सो गोइंग अप राइट, मतलब कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे जो नीड्स है मिल्क की, एग्स की एंड मीट की, वो भी रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होती जा रही है। ऑल्सो द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट of livestock has brought in new limitation in livestock farming, मतलब कि different types of farming related to livestock are utilized and used nowadays right। उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो है कैटल फार्मिंग।
केटल्स के अंदर आप लोगों को पता है काउस, बफेलो, सीप्स, गोट्स, ये सब किसके अंदर आएंगे? केटल फार्मिंग के अंदर। ठीक है, उन सबको ग्रो करना, उसका मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट करना, ये सभी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? हम लोग पढ़ेंगे केटल फार्मिंग के अंदर, राइट। तो केटल फार्मिंग हम लोग डिटेल में आगे नहीं जाते, मैं आप लोगों को एक शॉर्ट एंड सिंपल एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ जिसके अंदर से आप लोगों को जो केटल फार्मिंग जो है वो क्लियर कट आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन से टाइप से, उसके नेम क्या है, वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं, वो सभी चीज़ें आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। ठीक है। Animal husbandry. By definition, it is the science of breeding and caring for farm animals. What do we mean by breeding and caring for animals? I'm sure you have studied about hybridization of different breeds of animals in lower grades. Why do we employ techniques of hybridization? The answer is quite simple. It is to ensure good qualities of animals which prove advantageous to humans. What all does the management of animals then involve? It involves work in 3 distinct areas. Animals need to be fed, breeding of animals is planned, and diseases that attack animals must be controlled. That seems like a lot of work. Why do we need animal husbandry? As we know, the population of humans is on the rise. It is necessary to provide food for their needs. Animal husbandry takes care of the growing needs of the population to a large extent. Animal husbandry includes different types of occupations like cattle farming, poultry farming, and many more. We will study a few in the lessons that follow. In this lesson, we will look at cattle farming. Which animals do cattle include? Cows? Yes, cows and bullocks, oxen, bulls are the most common cattle. What purposes do the cattle serve? They are dual-purposed, and can you guess what those 2 purposes are? What is the main thing we get from cattle? Milk, that's right. Cattle farming comprises of milched animals, or in simple words, animals that provide us with milk. Milk, as we know, is the crux of the dairy industry. A variety of dairy products require milk as their raw material. However, the milking period of milched animals is very short. How do farmers ensure a constant supply of milk production throughout the year? This can be done by increasing the lactation period of these animals. What do we mean by the lactation period? This is the period during which the mother feeds the young cattle. Where would we find such species of cattle? Do all species have long lactation periods? Unfortunately, that is not the case. Only exotic breeds of cattle have long lactation periods. Such exotic breeds have many desirable qualities apart from long lactation periods. They have excellent resistance to diseases. These exotic breeds have been crossbred to find the ideal type of cattle. However, having exotic breeds of cattle does not ensure good outcomes of cattle farming. Cattle need to be taken care of. This involves a lot of efforts on the part of the owners. They need to make adequate provisions of shelter and food for animals. These shelters must adhere to basic requirements of hygiene. Clean shelters, for instance, are a must. They need proper ventilation. Food, on the other hand, must be provided for 2 major reasons. First, food should sustain their needs for maintenance of the body. Secondly, additional food must be provided to suffice their bodily needs for producing milk. Is there anything specific that must be given to cattle? Well, cattle feed must consist of roughage, which is nothing but fiber. They should also be provided with micronutrients. This is with regard to their food requirements. What about the need to be protected from diseases? In order to protect cattle from diseases, which can be seen as well as those which are internal, cattle must be vaccinated. They must be closely monitored and proper medical facilities must be made available to them. If all these are in place, cattle farming can be a rewarding occupation. Cattle farming does serve the purpose then. What other purpose does cattle farming serve? Cattle, as we know, are used as draft animals. Bullocks, oxen and bulls are used for farm labor.
What work do cattle do on the farms? They are used for tilling, for driving carts, and for irrigation as well. There are two species of cattle that are most commonly used. Do you know what their scientific names are? They are known as Bos indicus cows and Bos bubalis buffaloes. The names are quite long, aren't they? Well, we can always refer to them as cattle or cows and buffaloes. With that, we have studied quite a lot about cattle, haven't we? In our next video, we will look at the idea of तो जैसे कि हम लोगों ने वीडियो के अंदर देखा है केटल फार्मिंग, राइट। केटल फार्मिंग का जो भी सब टॉपिक्स है वीडियो के अंदर आ जाते हैं, इसलिए हम लोग डिटेल में केटल फार्मिंग नहीं देख रहे हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है पोल्ट्री फार्मिंग। आप लोगों को एक बार रीड करना पड़ेगा जो भी थियोरी आप लोगों को दी गई है एनसीईआरटी में वो, राइट। नेक्स्ट जो है वो है पोल्ट्री फार्मिंग, राइट। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब क्या, तो कि कोई भी हेंस जो होते हैं, राइट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड चिकन, ठीक है, या फिर मीट के लिए उसे हम कंसिडर करेंगे इन अ पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू राइज डोमेस्टिक फ्लो ऑफ फॉर एग्स प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। ये सभी चीज़ के लिए वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है पोल्ट्री फार्मिंग। Therefore, improved poultry breeds are developed and farmed to produce layers for eggs and broilers for meat। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड्स को यूज़ करने के बाद अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड उसमें से आपको जो भी एग्स जो मिल रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं, जो भी मीट मिल रहा है वो भी अच्छी क्वालिटी का मिले, उसके लिए बहुत सारी ब्रीडिंग ट्रीटमेंट्स यूटिलाइज हो रही है। एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम बिटवीन इंडियन असील, असील इज वन टाइप ऑफ हैन, राइट, एंड फोरिजिन एक्सोटिक, फॉर एग्जाम्पल लीगहॉर्न ब्रीड्स। ये दोनों के ब्रीड्स में क्या किया कि ब्रीडिंग करवाया, उसमें से आपको जो नेक्स्ट वेराइटी या फिर जो न्यू वेराइटी मिली वो क्या थी, इम्प्रूव्ड वेराइटीज, मतलब कि अच्छी क्वालिटी की इम्प्रूव्ड वेराइटी थी। मतलब कि उसमें से आपको जो भी एग्स मिलेंगे वो भी ज़्यादा मिलेंगे, मतलब कि उसके एग्स ज़्यादा मिलेंगे तो चिकन्स ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि उसके अंदर जो मीट मिलेगा वो भी ज़्यादा अमाउंट में मीट मिलेगा, ठीक है। तो वो कौन कौन से वेराइटीज़ है और वो किसके ऊपर फोकस किया गया है उसके बारे में भी दिया गया है आपको। नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिकन्स, राइट, क्यों यूज़ किया है हमने, फॉर द इंक्रीज इन द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिकन्स। देन अगर हम आगे देखें तो क्या दिया गया है आपको, ड्रॉफ बॉयलर पेरेंट फॉर कॉमर्शियल चिकन प्रोडक्शन, राइट। बॉयलर इज वन टाइप ऑफ हैन जिसको यूज़ करते हैं फॉर द कॉमर्शियल चिकन प्रोडक्शन, राइट, चिकन को प्रोड्यूस करने के लिए कॉमर्शियली यूज़ होता है। देन समर एडेप्टेशन कैपेसिटी टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, मतलब कि वो जो भी हैंस होते हैं वो समर के अंदर, मतलब कि जब हाई टेम्परेचर होता है उसको एडेप्ट करने की उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको टॉलरेट करने चाहिए, मतलब कि हाई टेम्परेचर जो है वो उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, हाई टेम्परेचर में वो किल भी हो जाते हैं, राइट। उसको उससे बचने के लिए उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। देन लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। देन रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बट विथ एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेशन यूजिंग एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स, राइट। मतलब कि उनको जो भी आप लोग फीड के लिए जो भी आप खाना दे रहे हो वो कैसा होना चाहिए, खाना एक तो चीप होना चाहिए बट लार्जली कंटेन फाइबर्स, वो फाइबर्स कंटेनिंग होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं एग्स एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। ब्रॉयलर चिकन्स आर फीड विथ विटामिन रिच सप्लीमेंट्स फीड फॉर गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी। देखो वो जो भी चिकन है, ब्रॉयलर चिकन जो है उसके अंदर क्या होता है प्रेजेंट, तो विटामिन रिच होता है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको जो भी वो उसको जो फूड दोगे उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स प्रेजेंट होने चाहिए, जिसकी वजह से उसका जो ग्रोथ है वो अच्छा होगा एंड
वो जो फीड करेंगे वो अच्छी क्वालिटी में या फिर अच्छी क्वांटिटी में वो फीडिंग कर सकते हैं। केयर इज टेकन टू अवॉइड मोरालिटी एंड मेंटेनेंस, फीडरिंग एंड कर्सकेज क्वालिटी। दे आर प्रोड्यूस्ड एज बॉयलर्स एंड सेंड टू मार्केट फॉर मीट पर्पस। मतलब कि जो बॉयलर्स चिकन जो होते हैं उसका यूज़ कहाँ पर होता है, इन फॉर अ मीट, मतलब कि मार्केट्स के अंदर जो मीट मिलता है वो बॉयलर्स चिकन का होता है, ठीक है। दूसरी भी वेराइटीज़ मिलती होंगी मार्केट के अंदर, बट मेनली आपको यहाँ पर एक ही चीज़ दी गई बॉयलर चिकन्स के बारे में, ठीक है। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इम्पोर्टेंट। मतलब कि पोल्ट्री बर्ड्स या फिर हैंड्स के लिए जो भी आप, ऐसा नहीं कि पोल्ट्री फार्म में जस्ट आप हैंड्स ही यूज़ करते हो, डक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर यूज्ड एज फूड राइट इन डिफरेंट कंट्रीज, तो वो सभी किसके अंदर आएंगे, पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर ही उसे कंसिडर करना होगा। एक दूसरी चीज़ और कि जहाँ पर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होना चाहिए, राइट, टेम्परेचर शुड बी मेंटेन। नेक्स्ट वन इसके वहाँ की जो कंडीशन होगी वो हाइजेनिक कंडीशन होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, राइट। देखो आपको यहाँ पर यही दिया गया है, दिस इंड्यूस मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड हाइजेनिक कंडीशन इन हाउसिंग एंड पोल्ट्री फीडिंग एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड पेट्स। मतलब कि वो डिजीज़ फ्री होनी चाहिए, मतलब कि जो भी जगह है वहाँ पर वो कोई किसी भी तरह की डिजीज़ प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, पेट्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। और वो जो भी प्लेस है वो हाइजेनिक होनी चाहिए। ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द हाउसिंग, न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ बॉयलर्स आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर्स। मतलब कि एग लेयर्स जो होते हैं ना, एग लेयर्स मतलब कि जो हैंस या फिर जो भी बर्ड्स है जो एग्स देते हैं वो, उससे बॉयलर जो चिकन होते हैं उसका जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन या फिर एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स होती है वो डिफरेंट होती है, अलग होती है, ठीक है। The ratio for boilers in protein rich with adequate fat, मतलब कि उसका रेशियो क्या होगा बॉयलर्स का, प्रोटीन रिच एंड मतलब कि जो भी फूड रिक्वायरमेंट उसकी जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच होनी चाहिए और उसके अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट होना चाहिए बॉयलर्स के अंदर। अगर फैट ज़्यादा होगा तो ही जो चिकन है उसका मीट जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। इसलिए द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज केप्ट हाई इन पोल्ट्री फीड्स, मतलब कि विटामिन ए एंड के का जो विटामिन ए एंड के कंटेनिंग जो भी फूड होगा, राइट, उसको आप ज़्यादा दोगे पोल्ट्री फीड्स के अंदर। देन पोल्ट्री फाउड सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीज कॉजिंग बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स एज वेल एज फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। मतलब कि पोल्ट्री फीड्स जो होते हैं ना वो बहुत सारे डिजीज़ थ्रू वो हो सकती है, उसको बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है, राइट। कौन कौन किसकी वजह से डिजीज़ हो सकते हैं, तो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई, पैरासाइट्स, राइट, इन सभी चीज़ों की वजह से उनको डिजीज़ हो सकती है, तो उससे हमें बचाना होगा। दिस नेसेसिटेड प्रिपेयर क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन एंड स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एट रेगुलर इंटरवल। उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पर आप लोगों ने इन बर्ड्स को जहाँ पर रखा है या फिर पोल्ट्री फार्मर या फिर पोल्ट्री फार्म जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर आपको थोड़े थोड़े टाइम में उसे क्लीन करना होगा, उसे सैनिटाइज करना होगा एंड उसको डिसइंफेक्टेंट से स्प्रेस भी करना होगा। Appropriate vaccination can prevent the occurrence of infectious disease and reduce loss of poultry during an outbreak of disease। अगर उसे हम प्रॉपर वैक्सीनेशन देंगे, राइट, मतलब कि जब वो छोटे बच्चे होंगे तब भी अगर हम उसे वैक्सीनेशन दे देंगे तो क्या होगा कि जो उसके लास्ट में जब उसको किसी भी तरह के डिजीज़ होने के चांसेस होंगे तो आपको कम से कम नुकसान होगा। मतलब कि जो भी बर्ड से जो मर जाएंगे, राइट, मतलब कि जो भी चिकन से जो मर जाएंगे उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, कम से कम लॉस होगा, ठीक है। तो ये है पोल्ट्री फार्मिंग। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे फिश प्रोडक्शन एंड बी कीपिंग। तो यहाँ पर आज हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।